Are you still wasting your time surfing between random PDFs, YouTube videos and fake Telegram tips? You have to stop right there. अगर आप अपने बैंकिंग के प्रिपरेशन रैंडम वीडियो से या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर एक्सपर्टीज की कमी है, इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि नॉलेजिस्ट पर वी डोंट बिलीव इन मेकिंग यू स्टडी एवरीथिंग, रादर we want you to study what is important for your exam point of view. Crisp content, easy to understand bullet points, direct exam related questions and no clutter, no filters, just exam essential. और ये सैंपल सेशन आपका रहने वाला है एज एन आई ओपनर. So see once and then decide what to join and where to join. A single day delay could cost you the entire career. So toppers have started their preparation at Knowledgeist. So don't just delay, prepare which is best in the industry. Course link and everything is available in the description of the video, comment section as well as in our application and website. Go and start your authentic preparation right now. MCQs, there is nothing beyond it in RBI circulars. There is nothing beyond it. Static master circulars are there, that is in your ready reckoner. इसीलिए आपको ready reckoner में जाना है. जो 2 साल के RBI सर्कुलर से जो भी क्वेश्चन बन सकता है यहीं पे है, और कुछ स्टैटिक MCQ भी है जैसे करेंसी चेस्ट के ऊपर. ठीक है. What is the new annual remuneration cap for a non-executive director as per RBI's latest update? Non-executive director in bank. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन बैंक. जल्दी जल्दी आंसर करिए. आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है. आई मस्ट अश्योर यू कि आज का सेशन खाली मजा नहीं देगा, आपको मार्क्स भी देंगे, और आपको जो 500 आरबीआई सर्कुलर मैंने दिया है लास्ट मिनट में पढ़ने के लिए, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द जीस्ट ऑफ इट. यस, नेगेटिव मार्किंग इज देयर. नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन बीओएम. यस प्लीज. यस, राइट आंसर इज 30 lakhs. So many of you answered. Leo Prabhakaran, Maya Crafter, Vivek S. यही तो है आप लोगों का स्पिरिट. एक सेकंड के लिए आपके कमेंट्स दिखा देता हूं, थोड़ा सा मुझे चेन आ जाएगा. वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट राइटली. लगता है कि पढ़ लिया है. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए कार्ड इश्यूअर्स डिले इन क्लोजिंग ए क्रेडिट कार्ड अकाउंट एज पर लेटेस्ट डायरेक्शन? क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग में भी दिक्कत हो जाता है. मेनी पीपल फेस इशू इन ज्वाइनिंग इन द बैंक्स ड्यू टू देयर क्रेडिट कार्ड डिलेस. Credit card is not closed. They have never taken a credit card. They never knew that they were having a credit card. They went to a mall. Somebody said, "Sir, please take a card. Don't use it. Take it for your emergencies. Please, I have a target. Please take it." You took it. You never used. The annual fee is charged. Then the penalty. But now everything is over. ये सब बकवास नहीं चलेगा. ठीक है. Yes, it is 500 per calendar day of delay. According to the new amendment, if a card issuer fails to close a credit card account within 7 working days, there will be a penalty of 500 per calendar day of delay payable to the card holder, assuming there is no outstanding amount in the account. ठीक है. डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है. आपको ये भी पता चल गया कि 7 days है. So what is the minimum net worth required for a SFB to convert to universal bank? इसमें बहुत ज्यादा गूगल में इधर उधर है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. अनंत बारीवल, थैंक यू फॉर आस्किंग. मेनी ऑफ यू आर आस्किंग. थैंक यू फॉर दैट. आई एम फाइन. मतलब हेल्थ तो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है. इट्स ए नॉर्मल व्हाट यू कॉल सीजनल फीवर और कोल्ड. बट आई एम बैक विथ एनर्जी. मेरा गला अभी भी सही नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों के साथ चिल्लाने से एनर्जी वापस आ जाता है. मुझे मेरा एंटीबायोटिक मिल जाएगा अगर आप कल मेरा दिन अच्छा कर दे तो. यस, इट इज 1000 crore. 1000 crores. SFB to convert into universal bank, 1000 crores. 1000 crores. You people are my antibiotics. Don't worry. So what is the validity period for a KFS of loan with a tenor of 7 days or more? 7 दिन से ज्यादा का आप लोन ले रहे हैं.
You can take a loan for 7 days. If you are taking a loan beyond 7 days and key fact statement is given to you, right? तो वो की फैक्ट स्टेटमेंट का वैलिडिटी कितना दिन का है आपको मिला, आपने अगर अप्रूव नहीं किया केएफएस को फिर दिक्कत हो जाएगा। What is the new settlement cycle for equities as directed by RBI? RBI के डायरेक्शन के अनुसार जो आप इक्विटी मतलब शेयर परचेज करते हैं वो कितने दिन में आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। सेटलमेंट करता कौन है? सेटलमेंट करता कौन है? अगर आपके इक्विटी के ट्रांजैक्शन है, सेटलमेंट करता कौन है? सेटलमेंट होके किसके पास जाता है? सेटलमेंट होके किसके पास जाता है ये भी बताइए। लगे हाथ आपके फंडाज भी क्लियर हो जाने चाहिए, लगे हाथ आपके फंडा भी क्लियर हो जाने चाहिए। सेटलमेंट इंडिया में सिक्योरिटीज का करता कौन है, उस काउंटर पार्टी का नाम क्या है, और सेटलमेंट होने के बाद जाता कहां पे है? सेटलमेंट तो हो जाएगा, फिर जाएगा किसके पास? आपके कौन से खाते में रहता है वो? सेबी के पास नहीं जाता है, सेबी के पास नहीं जाता है। T+1 T+2 से चेंज होकर T+1 हुआ है। T+ मतलब टुडे +1। आज आपने किया, नेक्स्ट वर्किंग डे नेक्स्ट मार्केट डे में आपके CDSL के अकाउंट में या फिर NSDL के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। What are CDSL, NSDL? They are depository participants and it is cleared by this clearing is done by CCIL. Yes, डिपोजिटरी के पास मतलब यस डिमार्ट अकाउंट में तो आएगा, डिमार्ट अकाउंट में आएगा। बस इस डिमार्ट अकाउंट का लेखा जोखा या तो CDSL के पास होता है या फिर NSDL के पास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यू बल्क डिपोजिट? रेडी रेकनर 2 में इसका आंसर सही दिया गया है। किसी में पिछला वाला अपडेट था तो मैंने RBI सर्कुलर में ले आया आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। लाटेस्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था मैंने बहुत बार। RRB के लिए अमाउंट अलग है, RRB के लिए अमाउंट अलग है। जल्दी जल्दी जाएंगे। When I need motivation, बाकी लोग जब मोटिवेशन मेरे स्टूडेंट्स को दरकार होता है, आप लोग बोलते हो कि सर कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे दीजिए, क्लास कर लीजिए, ये कर लीजिए। मुझे जब मोटिवेशन की जरूरत होता है मैं आके आपके साथ लाइव क्लास कर लेता हूं, तो मतलब कितना एनर्जी मिलता है आई कैंट से यू इन वर्ड्स। इवन इफ आई एम नॉट वेल, मतलब आप ये तो मतलब आप बुखार और सर्दी में आपको पता होता है ना कि कितना लगता है कि कुछ ही नहीं, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता। ऐसे में you people give me a lot of energy। 3 करोड़, ठीक है। RRB के लिए 1 करोड़, ठीक है, RRB के लिए 1 करोड़। So as per new circular of RBI, the incremental priority sector credit in districts where the credit flow is comparatively lower and per capita is less than 9,000. So what will be the weightage? 9,000 से अगर पर कैपिटा क्रेडिट फ्लो नीचे है तो उस जगह पे आप कितना परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल PSL, मगर आपने अगर 1 करोड़ का PSL वहां पे दिया उस डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको हम 90 लाख मानेंगे, 1 करोड़ 25 लाख मानेंगे, या 1 करोड़ 50 लाख मानेंगे, या 1 करोड़ को 1 करोड़ ही मानेंगे? यस, अगर क्रेडिट फ्लो कम है तो हम उसको 1 करोड़ 25 लाख मांगेंगे। अगर क्रेडिट फ्लो 9,000 से ज्यादा है तो हम उसको 90% मानेंगे, यानी कि कम दिया है, ज्यादा दिया है मगर उसको कम माना जाएगा। जो वेट है, क्रेडिट फ्लो का वेट है, वो कम आंका जाएगा। ठीक है, सॉरी 42,000, सॉरी 42,000 से अगर ऊपर है तो सॉरी, थैंक यू मुझे अपडेट देने के लिए, रमन राजपूत। यस, 42,000 से ऊपर अगर है तो आपको 90%, अगर 9,000 to 40,000 के रेंज में है तो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट, मतलब सेम है। ठीक है।